Hello students, I Professor Samita Shinde welcome you all for today's SP class. Uh, in the last class we already done with the your statutory provisions. Now in this class we will see the additional some general provisions. So what are that? Or the general principles. Here this is including your 6 points. Number one point is proper authority. Whenever we are going to decide about the allotment, the board of directors or the allotment committee set up by the board has the authority to allot the shares. यानी इसका सिंपल मीनिंग क्या है प्रॉपर अथॉरिटी यानी कि आपको किसी को शेयर्स अलॉट करने हैं कंपनी को तो क्या करना है आपको अलॉटमेंट कमेटी बनानी है या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू आप क्या कर सकते हो यू कैन स्टार्ट विद द अलॉटमेंट पार्ट. Next is the allotment must be against the application only. यानी those who are given the application उनको ही allotment होगा और जिनका application नहीं है उनको allotment नहीं होगा. A company can allot the shares only if it has received a return application for the shares from the applicant. This is everyone understand? Now we will see the next point, that is point number 3, reasonable time. As per the Act, allotment shall be done within the 60 days of receipt of an application money. यानी allotment कब होना चाहिए जब जब का इन्वेस्टर्स का मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है विद इन दैट 60 days दे कैन allot the shares. Allotment can be made from the 5th day from the date of issue of prospectus. Allotment कब से हो सकता है allotment आपका डेट इशू डेट से लेके यस इशू डेट ऑफ इशू ऑफ अ prospectus. तो 5th day से you can start with your allotment part. Absolute and unconditional allotment. What is given in the absolute and the unconditional? Shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus. Yes. शेयर्स का अलॉटमेंट कौन से बेसिस पे होता है जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोस्पेक्टस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके allotment start कर सकते हो या allotment दे सकते हो. And the application form. No change in the terms of allotment or a new condition can be added at the time of allotment. आप वो टाइम नहीं डिसाइड कर आप अलॉटमेंट के टाइम नहीं बोल सकते क्या हम ये कंडीशन उसमें ऐड कर रहे हैं तो ये होगा तो आपकी इसके अगेंस्ट ही शेयर्स मिलेंगे. जब आपने प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाया था तब तब के टाइम जो आपके प्रोसेस थी प्रोविजंस थे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे तो वो ही सेम जो आपके हैं वैसे ही रहेंगे. That means the shares should be allotted on the same terms and condition which is stated in the prospectus and the application form. एप्लीकेशन फॉर्म और आपके प्रोस्पेक्टस में जो कुछ कंडीशंस मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यू कैन rule your rules provisions or the rules and regulation. No change in the terms of allotment or the new conditions can be added at the time of allotment. allotment में के टाइम आप कुछ भी changes नहीं कर सकते आपकी conditions में या rules में provisions में या आप कुछ नया उसमें add नहीं कर सकते. So this is your fourth point, absolute and unconditional allotment. Now we will move to your fifth point. What is in the fifth point? Fifth point is a communication. Company has to inform the applicant that the shares have been allotted to him by sending the letter of allotment or the allotment advice. The letter gives the detailed number of shares allotted, amount of allotment money to be paid, etc. तो ये अलॉटमेंट लेटर किसको मिलता है जिन लोगों को शेयर्स मिलते हैं उनको मिलता है अलॉटमेंट लेटर और उसमें आपको सब बारीक से चीज़ें लिखनी पड़ती है कितने आपके शेयर्स थे आपको कितने अलॉट हुए हैं शेयर्स का प्राइस क्या है आपकी अलॉटमेंट मनी क्या है एप्लीकेशन ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है. और जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिलते उनको कंपनी इशू करती है रिग्रेट लेटर. यानी आपको जिन लोगों को शेयर्स कंपनी को देने हैं उनको अलॉट करने हैं उनको अलॉटमेंट लेटर लिखना है
और जिन लोगों को शेयर्स नहीं दे पाई कंपनी, उनको कंपनी रिग्रेट लेटर लिखती है। ये प्रीवियस ईयर तक ऐसे ही वहाँ पे स्टेटमेंट्स थे। Now in this your syllabus they are not going to include it, but for information I just told you. Now we will begin with the last point for the general provisions or the general principles. That is, allotment should not be in contravention of any other laws. यानी क्या, ये आप जो अलॉटमेंट कर रहे हो तो उसके वजह से आपके बाकी के जो रूल्स, बाकी के जो लॉज है वो स्पॉइल नहीं होने चाहिए, वायोलेशन नहीं होना चाहिए. A company cannot allot the shares by violating or contradicting any other existing laws. यानी आपके अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो प्रॉपर लीगली होना चाहिए. उसके लिए आपको बाकी के कोई भी रूल्स, बाकी कोई भी लॉज ब्रेक नहीं करने हैं. वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है. द शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर. माइनर जो होता है जिसका एज ऑफ 18 कंप्लीट नहीं है, तो उसको आप शेयर्स दे नहीं सकते. सो दीज आर द वेरियस जनरल principles related with the allotment part. The procedure part is already cancelled to you all, and this is very simple. Now we will begin with the next part, that is the share certificate. अभी यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ एनी पिक्चर्स एंड ऑल, दिस इज़ अ स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट्स. ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? बोर्ड में लास्ट ईयर तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि शॉर्ट नोट्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट एंड एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स. तो कंटेंट पार्ट आपको बहुत ही कम दिया है. लास्ट ईयर तक एटलीस्ट 15 to 16 कंटेंट के पॉइंट है, तो इट कैन बी ईजीली रिमेंबर. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट. अभी शेयर सर्टिफिकेट क्या कब मिलता है? जब सिंपल टर्म्स में व्हेन यू परचेज द कंपनी शेयर्स यू विल गेट द शेयर सर्टिफिकेट. नाउअडेज यू कैन गेट द शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट. डीमैट में मिल जाते हैं, फिजिकली नहीं मिलते. चाहिए होता तो मिल जाएगा, बट नाउअडेज एवरीवन इज फॉलोइंग डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट प्रोसेस. तो शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है? दोज हु आर परचेसिंग द शेयर्स दे आर गेटिंग द शेयर सर्टिफिकेट. नाउ व्हाट इज दैट? Share certificate, it is a register certificate that issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares of the company. Share certificate is a prima facie evidence of the title of shares. यानी क्या? शेयर सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. इट इज एन एविडेंस. शेयर सर्टिफिकेट इज व्हाट? It is a registered document. It is a registered document. Yes, and it is a evidence. किस चीज़ का evidence होता है? It is a proof of ownership. और ये कैसे काम करता है? Prima facie, यानी first evidence. This is a proof that you are owning the title of shares. यहाँ तक clear हुआ? कौन सी 3 चीज़ें याद रखोगे? Registered document issued by the company and the evidence of ownership or the title for the specified number. ये चीज़ आप याद रखोगे. तो यहाँ तक याद हुआ आपको? Share certificate is a registered document issued by the company as the evidence of ownership of a specified number of shares of the company. Shares शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ अ टाइटल ऑफ अ शेयर्स. यानी आपके पास जितने शेयर्स है उसका क्या होता है? आपके पास ये एविडेंस होता है, प्रूफ होता है. If any dispute about the membership arises, the share certificate will be held as a evidence and not the entries in the register of members. यानी हाँ, पता है आप लोगों को कि कंपनी मेंबर्स का रजिस्टर भी मेंटेन करती है, बट कुछ भी प्रॉब्लम होता है रिलेटेड विद द ओनरशिप पार्ट और द एनी पार्ट रिलेटेड विद द शेयर्स, तो ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? आपके पास है यानी आपके पास प्रूफ है कि आप यू आर ओनिंग सम सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर्स. यहाँ तक क्लियर हुआ? शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी पेड अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी if any and signed by 2 directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any other authorized person. यानी क्या? शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है कि उसके ऊपर किसका सील होता है? कंपनी का. कंपनी का सील यानी कंपनी का स्टैम्प होता है प्रॉपरली. और क्या होता है? It will act as a company's document. It given to you.
और इसके ऊपर किसके साइंस होते हैं? टू डायरेक्टर्स, दोज हु आर द ऑथराइज्ड, या कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है उसके साइन होते हैं। The next is a company has to issue share certificate to all allottees as well as the transferees on transfer of a shares. It is issued on partly or the fully paid up shares. ये याद रखना है कि शेयर सर्टिफिकेट किसको मिलते हैं? ट्रांसफरी को भी मिलता है, उसके बाद आपके जो अलॉटमेंट हुए हैं उनको भी मिलते हैं। और ये किसके अगेंस्ट मिलते हैं? आइदर यू मेक अ part payment or full payment, you will definitely get the share certificate. This is some important points related with the share certificate. Now we will see the content part. Contains are very easy. Content में क्या क्या होगा शेयर सर्टिफिकेट के? नेम ऑफ द कंपनी, CIN number, register office or address, folio number, share certificate number, name of the member, nature of the share, number of share, distinctive number, amount paid on shares, common sale, if any signature of a two directors or the company secretary. तो ये सब क्या हो गए आपके कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यानी शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या क्या होते हैं? नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर ऑफ द कंपनी, रजिस्टर एड्रेस ऑफ द कंपनी, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ द मेंबर, नेचर ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव यानी क्या? सीरियल नंबर्स, अमाउंट पेड कितना किया है, उसके बाद कॉमन सील, इफ एनी अदर सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. So this is called as a your share certificate content. यहाँ तक क्लियर हुआ? In today's class we already completed the general principles related with the allotment part. सेकेंड हमने देखा कि शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है. तो शेयर सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट है? रजिस्टर डॉक्यूमेंट है. कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है. क्यों इशू करती है? बिकॉज इट्स एविडेंस दैट यू आर गोइंग टू सेल योर शेयर्स टू द सो एंड सो मेंबर और द पर्सन. यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद ये कौन से शेयर्स के अगेंस्ट मिलते हैं? आइदर यू आर गोइंग टू पेड पार्टली और द फुल्ली पेड अप शेयर. इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट and it is a prima facie evidence. That's it. And content part is in front of you. So this is your today's class, and thank you for listening very patiently. Thank you.